ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। Welcome everyone. Today's 16th session of Bhagavad Gita course, Gita certification course. तो पहले रिकैप कर लेते हैं कल के सेशन में हमने क्या समझा। तो कल के सेशन से कोई एक पॉइंट शेयर करना चाहेंगे तो one point so that we can start our session smoothly. Any one point? Yes. कृष्णा सब कारण कृष्णा सब कारण सभी कारणों के कारण है। Yes. What is that sloka? Do you know what is that sloka from Brahma Samhita? ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. Right, he is the cause of all causes. Yes, very nice. Okay, good. Or others? I expect from everyone should share at least 1 point in everyday class. Okay, before speaking myself, everyone should share one point. Then only I can understand, yes, you are attending sincerely. Otherwise, you are coming and just sitting half an hour and going, simply time wasting. Hare Krishna, Prabhu. Yes, because I am giving so much time and energy so that you can become sincere and learn something from Bhagavad Gita, not just coming and going. No, that is not the case. Okay. So, and my class also make point. Don't sit just to show movie. Okay. Sit with note, make notes. Right. Yes, Jai Krishna. जैसे कि प्रभु हमने कल पढ़ा था कि तत्वों के बारे में, जीव तत्व, शक्ति तत्व और शिव तत्व और विष्णु तत्व होता है। Okay. Can you explain little bit what I have described yesterday about these tattvas? जी, जैसे कि शक्ति तत्व को 3 भाग में भाग किया गया, विभक्त किया गया। एक है तटस्थ और एक है जोग माया और एक है महामाया। इसमें से और हमारा जो भौतिक जगत है वो महामाया कंट्रोल करती है, द्वारा कंट्रोल होता है। और जैसे विष्णु तत्व से आते हैं कृष्ण, फिर उनसे निकलते हैं बलराम जी, फिर उनसे और उसके बाद याद नहीं पड़ा। ओके, व्हाट इज तटस्थ शक्ति? जो जैसे प्रभु जी एक रिवर में पानी होता है और जल होता है, स्थल होता है, तो जल और स्थल को जो अलग करता है उसको तट बोलते हैं। वो वैसे ही तट वैसे ही I give that example just to make understanding. Yeah. Okay. Tatastha Shakti means Jiva, right? Jiva Tattva, like all of us, living entities, right? जी. So Tatastha Shakti means in between the external energy and internal energy, right? In between the Yogamaya and Mahamaya. Okay. So who is Mahamaya? Mahamaya is a Durga Devi, right? Who is the control or in charge or director of this material world, right? And who is Yogamaya? Yogamaya is a internal potency or Antaranga Shakti or Ahladani potency, Shakti of Krishna, like Radharani, Srimati Radharani. Okay, these things. Okay, thank you. Or others, everyone should at least 1 point. Everyone have to share at least 1 point. Otherwise, simply wasting time. Yes. Quickly. प्रभु जी लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे थे कि
जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो जो बॉस होता है वो क्या करता है, दूसरों को अब खुद नहीं करके दूसरों को ये करता है, फोर्स करता है करने के लिए। और जो लीडर होता है वो खुद सबके साथ चल के खुद पहले करता है, फिर दूसरों को बताता है। Okay, that is you are sharing this point from day before yesterday. Any point from previous my yesterday's class? प्रभु जी, कल मैं वो डाउट पूछ रहा था जो छाती में वो गए सबके पास एक एक करके और सबका मतलब सबका बेइज्जती किए, और जो लास्ट वाले जो विष्णु जी थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उससे पता चलता है कि वो सुप्रीम गॉड है। Okay, good. Any others? जल्दी जल्दी quickly, we don't have so much time actually. जल्दी जल्दी शेयर करो. Others? प्रभु जी हम मटेरियल नेचर के धक्का के कारण जन्म लेते हैं यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में। Okay, you have shared धक्का one. देकर हमें जन्म I expect from others. You have already said one point. Let me give chance to everyone actually. Okay, give chance to everyone. Yes, others. Quickly, quickly. Prabuddha is there or not? Prabuddha. Let me see just how many are there. हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन है? लाल बाबू। Yes, please. Yes. प्रभु जी, हम बोल रहे हैं कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि कभी कुछ होता है तो बोलते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ऐसा हमको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो हमेशा की जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी डाउट नहीं पूछ रहा हूँ मैं अभी ये पूछ रहा हूँ कल क्लास से पॉइंट शेयर करना है। यू आर आस्किंग डाउट मी। डू यू रिमेंबर एनी पॉइंट फ्रॉम माय प्रीवियस क्लास? जस्ट शेयर वन पॉइंट। कल की क्लास में जो बताया उसका एक पॉइंट शेयर कीजिए। Are you making notes while I'm in class? Are you making notes or not? No, Prabhu ji, because I am then how you will remember? You will forget everything. So please, while sitting in the class, please note down either in mobile or pen copy, right? Otherwise, it's simply useless. You will not listen or making advance anything. You will forget everything. Because every Sunday there will be exam, right? Please take it sincerely. Actually, this is a Gita course, not just coming and going. No, this is not like that. I am giving 1 hour 30 minutes to prepare this class before coming in front of all of you, right? So it is all of your responsibility to sit, prepare, okay, and revive all these things with in previous session, okay. Anyway, because yesterday, okay. Yeah, so I request everyone, please sit with notes and make notes, because every Sunday there will be exam. Tomorrow also there will be exam every Sunday. So if you will not note down, then you will forget everything and your marks will not come nicely. Yes, okay. Prabuddha. Next, Prabuddha. हरे कृष्ण बाबू जी। Yes. वीडियो को सब ओपन रखिए है ना? Keep your video on. No problem. Yeah. प्रभु जी, आपने कल जो बोला था कि जैसे विष्णु के मतलब जब सांस छोड़ते हैं तो उससे बहुत सारे ब्रह्मांड बनते हैं। Can you explain little bit? तो जो बबल्स जो ब्रह्मांड बनते हैं उसमें वो जो गर्भदक्षा विष्णु होते हैं वो चले जाते हैं। नाभि से कौन निकलते हैं? हाँ। Who is that? Mute yourself. Yeah. Yes. Keep continuous. तो उतना ही पता है। Okay. Yes. So that is why I am telling you, please make notes. Otherwise, you will forget everything. Okay. Just don't come just for sitting and wasting time. We are learning very most confidential knowledge here, right? So please take it sincerely. Huh? Each and every word is very, very important. Whatever I am saying, right? Yeah. Okay. At least you are trying something. That is nice. Okay. Next, who is left? Yeah, Sunil. Hare Krishna Prabhuji. Yes, please.
Yes, please speak. प्रभु जी कल की क्लास में आप बताए थे क्या प्रभु जी? Yes, please tell. Yeah, keep continue. प्रभु जी कल आप जैसे अगर भगवान जब सांस लेते हैं तो कितने भी ब्रह्मांड उनकी जो बबल्स निकलते हैं सांस लेते हैं तो कितने भी ब्रह्मांड बनते हैं, और वैसे ही सारे जीवों को अन्य अन्य अपने कार्यों के लिए बैठाए हुए हैं। Okay. Okay. Next, who is else? Vikash. Hare Krishna, Prabhu. Yes. So last class, Krishna Bhagavan tell I am the fulfillments. I don't want anything. Means he's fulfill their self only. So repeat it again. Yeah, Krishna is fulfill himself only. He don't require any other means. Speak in Hindi, no problem. हिंदी में बोलो. मतलब वो बोल रहे हैं कि हम पूर्ण है, मतलब सब तरह से, मतलब जो भी चीज है हम खुद में ही पूर्ण है। मुझे मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए जो कि मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। किंतु जो ये प्लैनेट 3 प्लैनेट सिस्टम, उसमें मतलब हम आते हैं क्योंकि जो डिवोटी लोग का उनका ये के लिए, मतलब उनका एंजॉयमेंट के लिए, उनको मतलब। ओके, थैंक यू। तो उसका मैंने एक बार बताया था क्या, आत्माराम। सो कृष्णा इज आत्माराम। आत्माराम मीन्स रिमेंबर दिस वर्ड एक्चुअली। वन आत्माराम मतलब वन हु टेक्स प्लेजर विद इन, वन हु टेक्स प्लेजर विद इन, जो अंदर ही मतलब प्लेजर लेता है, उसको बोलते हैं आत्माराम। तो उसको फिर दूसरे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है प्लेजर पाने के लिए। सो दैट इज व्हाई कृष्णास अनदर नेम इज आत्माराम, राइट? Yes, but then what is the purpose to create this universe? Yes, what is the purpose? Main purpose to give pleasure to his devotees, right? These annihilation of this, to destroy the, like this in Bhagavad Gita, as look at there, paritranaya sadhunam vinasaya cha duskritam, right? So vinasaya cha duskritam is a secondary, but what is the primary cause to appear the Lord in this material world? Primary cause is to give pleasure to his devotees, right? This is the primary reason why Krishna appear in this world. That is the main thing. Okay, anyway, so now let me go further on our today's session. Let me just share my screen. Yeah. So yes. Yeah. So today's verse is, so whatever slokas I am discussing here, these are very, very important slokas, because I am not covering each and every slokas. I am simply taking those who are very, very important, right? So each and every sloka which I am discussing in the class, please try to remember and learn and practice in day, and try to remember each and every slokas which I am discussing in the class. Okay, because these slokas are very, very important. I am picking important slokas from each chapters. Okay, these are very, very important slokas. Text 27. Yeah. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the 3 modes of material nature. I read it again. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, मतलब झूठे अहंकार के कारण, false ego के अहंकार से क्या हो जाता है, bewildered हो जाता है। और क्या सोचता है कि I am the doer, मैं ही करता हूँ। Whatever is occurring in this material world, who is the doer? I am the doer. Due to my everything is going on, I am the controller of everything. I am the doer, right?
एंड लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, हर चीज कैसे होकर हो रही है, इन एक्चुअलिटी, रियलिटी में क्या होता है, वट एवर इज गोइंग ऑन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ड्यू टू 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, नॉट ड्यू टू लिविंग एनिटी। ठीक है, केवल जो 3 मोड्स जो हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके प्रभाव से ही हर चीज यहाँ पर हो रही है। और जितने प्रकार की भी मिजरीज हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। ठीक है, तो हर चीज जो है केवल 3 मोड्स के प्रभाव से ही हो रही है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वी आर नॉट द डूअर, दैट इज सिंपली अवर फॉल्स ईगो, झूठ अहंकार है। और फॉल्स ईगो का मतलब क्या होता है, फॉल्स ईगो मींस टू फॉरगेट द रियल आइडेंटिटी एंड एक्सेप्ट false identity. So what is our false identity? To accept ourselves as a body, to think that I am the body. That is our false ego. And what is our real ego? Real ego means we are not these bodies, we are spirit soul. That is real ego. So there are 2 types of ego. One is false ego and one is real ego. So false ego means कि अपने आप को शरीर समझना कि मैं शरीर हूँ, और real ego क्या है, real ego है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। So which is better? Real ego. Yes, I am not this body, I am a spirit soul, I am a servant of Krishna, I am servant, I am not the doer. Right. So, and I am not enjoyer, I am enjoyed by Krishna. Krishna is the enjoyer and we are enjoyed. I am just an instrument in the hand of Krishna. So as Krishna want, let make him to use all of us. Right. That is the real identity of living entity. Yes, let's just read the purport. So I request anyone can read this purport, which is from starting only. Yeah. Can anyone read? Pramod, can you read it? After reading, mute. Hare Krishna, Prabhu. Yes, please read. 2 persons, one is Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level. Many appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by the false ego that he is the doer of everything. Yes. तो इसको पहले इतना समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि there are 2 persons, one is situated in Krishna consciousness and another is situated in material consciousness. तो इस तरीके से मतलब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पर 2 लोगों की बात कर रहे हैं, एक डिवोटी और एक मटेरियलिस्टिक पर्सन। मतलब उनको we can consider as like demons, है कि नहीं, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनकी एक्टिविटीज लाइक डीमन की तरह होती हैं। There is no regulations of eating, sleeping, right? So they are doing all the activities like demons. So 2 types of devotees, 2 types of human beings are there, devotees and demons, or you can say like demigods and demons, right? So those who are situated in Krishna consciousness, they are demigods, right? And those who are situated in material consciousness, or those who are involved in all types of sinful activities, they are considered to be as a demons. तो बाहर से एक्सटर्नली हमें ऐसा लगता है कि दोनों मतलब उनकी वर्किंग ऑन द सेम लेवल, राइट, वर्किंग ऑन द सेम लेवल, लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो डिफरेंस कहाँ से है? उनकी कॉन्शियसनेस के लेवल पर, उनकी पोजीशन के रेस्पेक्ट, क्योंकि एक डिवोटी है और दूसरा क्या है, डीमन है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे वही लिखा है कि the person in material consciousness is convinced by the false ego that he is the doer of everything. तो जो लोग डिवोटी नहीं होते हैं वो ही सोचते हैं, क्योंकि because they are on bodily consciousness, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम शरीर हैं, राइट। तो जितना हम अपने आप को ये समझेंगे कि आई एम दिस बॉडी, उतने ज्यादा ही हम जो है अपने आप को ये समझेंगे कि यस, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, आई एम द एंजॉयर, आई एम द डूअर, राइट। लेकिन जितना ज्यादा हम सोल के प्लेटफॉर्म पे आएंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे अपनी रियल आइडेंटिटी को। नो आई एम नॉट प्रोप्राइटर, आई एम नॉट कंट्रोलर, आई एम नॉट डूअर, राइट। कृष्णा इज एवरीथिंग, बिकॉज नाउ वी आर स्टूडेंट इन रियल कॉन्शियसनेस, दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। यस, somebody can read this highlighted point. Any other? Sandeep, can you read it from here? जी प्रभु जी।
He doesn't know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. He doesn't know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna, in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesh, or the master of the senses of the material body. For due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Yes, very nice. So very important purport is there, और बहुत सारी इसमें हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें. एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. वन लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति मटेरियल कॉन्शियसनेस में होता है, मटेरियल कॉन्शियसनेस का मतलब सिंपल से मीनिंग यही है. मटेरियल कॉन्शियसनेस मींस बॉडीली कॉन्शियसनेस. दैट्स इट. मटेरियल कॉन्शियसनेस मींस बॉडीली कॉन्शियसनेस एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस ठीक है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस. दैट्स इट. तो मटेरियलिस्टिक जो पर्सन होते हैं वो केवल शरीर के लेवल पे सोचते हैं हर चीज को. हाँ, सो ही डज नॉट नो. किसकी बात कर रहे हैं? जो मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहता है. ही डज नॉट नो दैट द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल नेचर. जैसा भी वो उसको लगता है कि आई एम द डूअर, लेकिन वो डूअर कैसे हो सकता है? क्योंकि मैकेनिज्म किसके द्वारा हो रही है? प्रोड्यूस बाय द मटेरियल नेचर. 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. So he is under the control of 3 modes of material nature. Then how can he be doer? There's no possibility at all. Which works under the supervision of the Supreme Lord. और जो मटेरियल नेचर है वो किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है? सुप्रीम लॉर्ड की. इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम. मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है, ये जो 3 मोड्स मटेरियल नेचर है, अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, ये किसकी अध्यक्षता में काम करते हैं? अंडर माई सुपरविजन. मेरी अंडर में ये काम करते हैं. तो लिविंग एंटिटी किसके अंडर में है? मटेरियल नेचर के अंडर में है. और मटेरियल नेचर किसके अंडर में है? कृष्णा के अंडर में है. राइट. तो दिस इज द डिफरेंस. जो आप सोच सकते हैं कि हमारी पोजीशन कहाँ है, बट फिर भी हमें कितना अपने ऊपर अहंकार होता है कि आई एम द डूअर, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो, है कि नहीं? The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently. जो कुछ भी हो रहा है उसको लगता है कि उसका कर्ता कौन हूँ? मैं हूँ. मैंने इतनी मेहनत की इसलिए हो रहा है ये सब. ठीक है. I am the control of everything. The person in ये हो गया this, and that is the symptom of his nescience. और यही कारण है कि he is in ignorance, अज्ञानता. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature. अब सोचिए कि हम डूअर कैसे हो सकते हैं? डूअर होने का मतलब है कि हम जैसा चाहेंगे वैसी हमें बॉडी मिलेगी. समझे बात? डूअर का मतलब ये होता है, डूअर मतलब कंट्रोलर. राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शरीर जो हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारे हाथ में होना चाहिए. हम जैसा चाहेंगे हमें वैसा शरीर मिलेगा. तो ऐसा होता है क्या? हमारी इच्छा से थोड़ी ना ऐसा होता है कि हमें बॉडी मिलेगी. वी आर फोर्स्ड टू गेट पर्टिकुलर बॉडी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल नेचर. मटेरियल नेचर जैसा चाहेगा वैसे हमें बॉडी मिलेगी. अंडरस्टैंडिंग? तो अब हम डूअर कहाँ से हुए? हम तो फोर्स्ड है ना, हमें फोर्सफुली हमें वैसा दिया जा रहा है. देन किस प्रकार के डूअर हैं? जब हमें खुद के हमारे शरीर पे हमारा अधिकार नहीं है तो हम क्या डूअर होंगे? बट स्टिल पीपल दे कंसिडर दैट आई एम द डूअर. सो दैट इज कॉल्ड nescience और ignorance और अज्ञानता. Under the order of Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activities should be engaged in Krishna service, in the service of Krishna in Krishna consciousness. So our bodily and mental activities, मतलब हमारा ये gross body and subtle body both should be used in the Krishna service. Why? Because this body ultimately belongs to Krishna only. Because this our body is not a property of ourselves. This body is property of Krishna. Why? Because both gross body and subtle body. Gross body and subtle body. So gross body is made up of 5 gross elements: earth, water, fire, air, ether. And mental means subtle body, means mind, intelligence, and false ego. So how many total elements? 8 elements. So these 8 elements are material elements.
So Krishna said in Bhagavad Gita, Bhumi rapo anlo vayu kham mano buddhi revata. Kham mano buddhi revacha ahankar itiyame bhinna prakriti rastha. So Bhumi rapo 7.2 उसमें भगवान बोल रहे हैं भूमि रापो अनलो वायु. भूमि मीन्स अर्थ, भूमि रापा, हाँ भूमि रापा, अनल, अनल अनल मतलब क्या होता है? अग्नि. अनल वायु, अनल मतलब अग्नि, वायु मीन्स एयर, अनलो वायु. और रापा मीन्स भूमि रापो अनलो वायु. फिर खम मनो बुद्धि रेविचा. खम मतलब आकाश, खम मन, मन मीन्स माइंड, एंड खम मनो रे बुद्धि, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस. खम मनो रे बुद्धि रेविचा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा. तो ये भगवान की कौन सी है? ये भगवान की इन्फीरियर पोटेंसी है. तो ये टोटल 8 मटेरियल एलिमेंट हैं और ये सब भगवान की प्रकृति है, भगवान की पोटेंसी है. तो इसका मतलब ये, और इन्हीं 8 चीजों से मिलकर हमारी क्या बनी है? शरीर मिलकर हमारा बना है. तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली शरीर किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान की प्रॉपर्टी है. बट ड्यू टू फॉल्स ईगो वी कंसीडर दैट ओह दिस बॉडी बिलोंग्स टू मी, एंड व्हाटएवर द थिंग्स रिलेटेड टू बॉडी दे आल्सो बिलोंग्स टू मी. माय फैमिलीज, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, माय this makan, गाड़ीज, बेंगलोस, whatever, this and this, this and this, everything related to body. तो ये क्या है? हमारा अज्ञानता है. ठीक है. Ultimately everyone, everything is property of Krishna. Nothing belongs to us. Nothing. The ignorant man forgets that the supreme personality of Godhead, the supreme personality of Godhead, who is known as Rishikesh, Rishikesh or master of the senses of the material body. Rishikesh का मतलब क्या होता है? Master of the senses. So but now we are now servant of the senses. We are servant of the senses, and Krishna is the master of the senses, right? So for due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego. इसमें रीजन दिया जा रहा है कि वो false ego द्वारा bewildered क्यों हो गया है? क्योंकि जन्मों जन्मों से उसने जो अपनी जो सेंसेस, इंद्रिय हैं, उसने उसको कहाँ पे यूज किया है? भगवान की सेवा में यूज नहीं किया है. कहाँ से यूज कर रहा है अब तक? केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए. हाउ आई कैन एंजॉय मोर एंड मोर, हाउ आई कैन एंजॉय मोर एंड मोर, बाय आवर 5 सेंसेस, राइट? इसलिए वो जो है bewildered हो गया है और उसको क्या लग रहा है कि यस नाउ आई एम एंजॉयिंग सो मच, सो आई एम द डूअर, व्हिच मेक्स हिम फॉरगेट हिज इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा. तो अभी नाउ एवरी लिविंग एंटिटी हैज फॉरगॉटन द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कि यस आई एम बिलोंग टू कृष्णा एंड कृष्णा इज अवर मास्टर एंड वी आर इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. So that is the thing. तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के हम डूअर हैं, क्या है हमारे जिसमें हम डूअर हैं. अब देखो लोगों को कितना अहंकार होता है अपने ऊपर के, ऐसे आई एम द कंट्रोलर, आई एम द डूअर. किस प्रकार के डूअर हो तुम भाई? अब देखो अभी जैसे अभी रात हो गई है, अभी कितना 8 बज गया, अभी सूर्य नहीं देख सकते हम, है कि नहीं? बताओ कितना तुम किस प्रकार के डूअर हो. अभी तुम कितना भी ताकत लगा लो, कितने बड़े से बड़े साइंटिस्ट को तुम बुला के ले आओ, सुप्रीम साइंटिस्ट को बुला के ले आओ, उसको तुम बोलो कि अभी तुम सूर्य के दर्शन करा के दिखा दो. कितने भी हाथ पैर मार लो, कितने बड़ी तुम साइंस की, जितनी तुम्हारी टेक्नोलॉजी सबको लेके आ जाओ, तुम अभी सूर्य के दर्शन नहीं करा पाओगे. इस प्रकार के डूअर हो तुम. क्या है तुम्हारा? राइट, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाएंगी, कुछ भी काम नहीं करेगा. राइट, केवल एक ही चीज काम करना पड़ेगा सूर्य के दर्शन के लिए. क्या? यू हैव टू वेट टिल मॉर्निंग, राइट, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी. कितना भी हाथ पैर मार लो. तो किस प्रकार के डूअर हो तुम, और किस चीज का अहंकार है तुम्हें? लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर कितना अहंकार करते हैं कि यस आई हैव मेड दिस, बंदे तो कितना मैंने एडवांसमेंट कर लिया साइंटिफिक. क्या एडवांसमेंट किया? राइट, नेचुरल चीजों को पाने के लिए तुम्हें वेट ही करना पड़ेगा, भले तुम्हारी कोई भी टेक्नोलॉजी काम में नहीं आएगी, फेल हो जाएगी सब कुछ. राइट, बट स्टिल वी कंसीडर यस आई एम द डूअर. क्या है डूअर हो तुम? और एक और एग्जांपल इसमें देते हैं. क्या? ब्रह्म संहिता में एक और एग्जांपल आता है. क्या? इधर देखियो, इसमें क्या बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में? भगवान ब्रह्मा बोल रहे हैं यस चक्षुरेश शबिता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा यशगया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? द सन हु इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, द सन हु इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, फुल ऑफ इनफाइनाइट एफल्जेंस, द इमेज ऑफ ऑल गुड सोल, इज एज द आई ऑफ दिस वर्ल्ड. आई ऑफ दिस वर्ल्ड, वो आई ही है ना इस वर्ल्ड की, क्योंकि सूर्य के कारण ही तो हम सब कुछ देख पाते हैं. इस तरीके से वो इस वर्ल्ड की क्या है? आई है, आंख है. आई एडोर द प्राइमेवल लॉर्ड गोविंदा इन परसुएंस ऑफ हुज ऑर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ हुज ऑर्डर, जिसकी आज्ञा से, जिसके निर्देश से, हुज ऑर्डर द सन परफॉर्म्स हिज जर्नी माउंटेन ऑफ व्हील ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या है? सूर्य
किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, किसके आदेश का पालन कर रहा है, कृष्ण की, राइट। तो ये है डूअर, कृष्णा इज द डूअर, वी आर नॉट द डूअर, ठीक है। सो वन थिंग इज, अनदर थिंग इज at every step we are controlled by material nature, at every step, हर स्टेप पे हम मटेरियल के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। So we are controlled by material nature and material nature is controlled by Krishna. So how inferior we are, but still we become puffed up, so much puffed up. Yes, we are doer. What type of doer you are? We are completely dependent. हमें किसी चीज का स्वतंत्रता है ही नहीं है, हम हर प्रकार से बंधे हुए हैं, क्या हर चीज से बंधे हुए हैं, हम फोर्स हैं ना, हम हर तरीके से, कुछ भी हमारे पास स्वतंत्रता है ही नहीं, फिर किसी का गर्व है हमारे ऊपर। We don't have any independence at all. We are forced to take birth, we are forced to have disease, we are forced to have old age, we are forced to take death, right? Birth, old age, disease, death, these are the four real problems of life, and no such material advancement, no such technology will work. कोई भी इसको नहीं रोक पाएगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ पाए। इसलिए प्रभुपाद ज्यादातर फोर्स इसी पे देते हैं। Now there are so much scientific advancement there. अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या है? पर्पस, अगर इतना एडवांसमेंट हो रहा है तो वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि को क्यों पूरी तरह से स्टॉप क्यों लगा पा रहे हैं, राइट? तो ऐसा एडवांसमेंट किस काम का? जितना एडवांसमेंट हो रहा है हम उतना ही क्या है जकड़ते चले जा रहे हैं इन चीजों में। तो अब देखिए ना, प्रैक्टिकली जितना एडवांसमेंट हो रहा है हम इन चार चीजों में और जकड़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो उल्टा हो गया ना भाई, एडवांसमेंट हो रहा है तो हमें इन चीजों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन हम इसमें और बनते चले जा रहे हैं, और बनते चले जा रहे हैं। सो मैंने डिजीज आ रहे हैं, कितने सारे डिजीज आ रहे हैं, है कि नहीं? तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, इसके साइकिल में व्यक्ति और फंसता चला जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली रियल साइंस मतलब होता है जो हमें इन चीजों से मुक्त कर दे, लेकिन अभी का जो साइंस है वो हमें और इसमें जकड़ता चला जा रहा है कि नहीं? तो ये तो दैट इज नॉट साइंस एक्चुअली। रियल साइंस इज दैट वन हु लीड्स अस टुवर्ड्स गॉड, दैट इज रियल साइंस। बट अभी का साइंस जो है वो हमें गॉड से दूर लेके जा रहा है, so that is very very dangerous to all of us, very dangerous. So what kind of doer we are, right? तो इसका एक मैं छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? इसको वीडियो में दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसको कंप्लीट करके आपको वीडियो दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारे किसी के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, हमारे खुद के बर्थ पे कंट्रोल नहीं है, हम फोर्स हैं जन्म लेने पर हमारे कर्मों के हिसाब से। तो किस प्रकार के हम डूअर हैं? हम अपना फेस कट सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम अपना फेस चूज नहीं कर सकते कि हमारा फेस कट क्या होगा, हम अपनी इंटेलिजेंस चूज नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स चूज नहीं कर सकते, और इतनी बहुत सारी चीजें हैं जो हम चूज नहीं कर सकते। तो किस प्रकार के डूअर हैं हम? What kind of doer we are? We can't choose our face cut, we can't choose our intelligence, we can't choose our parents. What kind of doer we are? Even we don't have control on our body's activities, है कि नहीं? कुछ भी डिजीज हो जाता है तो फिर हम बस बेफल्ड हो जाते हैं, कोई भी काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो किस प्रकार के डूअर हैं भाई? खुद के शरीर पे हमारा अधिकार नहीं है, खुद के शरीर को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम क्या कंट्रोल करोगे? Still we have so much puffed up. Yes, we are controller. I am the doer. सोचो, in spite of taking so much care of this body, ब्यूटी पार्लर जाना और ये सब इतनी प्रकार की क्रीम्स लगाना, उतने सब होने के बाद भी क्या आज तक कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है जो बोलता हो कि हाँ देखो आज हम कभी बोल्ड नहीं हुए, हम कभी मरेंगे नहीं? कोई क्लेम कर सकता है? कोई क्लेम नहीं कर सकता है। Why? Because we are forced to this material nature, and material nature is superior from us. Right? We are forced. Then why we are not accepting these things? Because we are puffed up. We are on bodily consciousness. That is the simple reason. Because we are bodily consciousness. That is why we are unable to identify that. तो जब तक हम bodily consciousness में रहेंगे, हम फोर्स ही रहेंगे material nature से। जब तक हम real conscious पोजीशन में नहीं आएंगे, तब तक हमें फोर्सफुली हमें इस तरीके से दबाया जाएगा और हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहेंगे, कभी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सुपीरियर टू मटेरियल नेचर, दैट इज व्हाई वी कैन इमीडिएटली फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ। बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नेचर इज अ मटेरियल इंफीरियर। सो एज सून एज वन टेक्स दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, इमीडिएटली ही बिकम्स he raised up to this material consciousness, three modes of material nature immediately cross the material nature, right? So that is the power of Krishna consciousness. Only so Krishna consciousness only solution has only Krishna consciousness, right? Otherwise there is no hope at all. Nobody wants the old age, but still it comes. Nobody wants disease, but still it comes. Nobody wants that, but it still comes. Then what type of doer we are? What type of control we are?
हम ओल्ड एज को नहीं बचा सकते, नहीं रोक सकते हैं, डिजीज को भी हम रोक सकते हैं। किसी की इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी डिजीज आ जाता है, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता लेकिन फिर भी डेथ आती है। These are the real inquiries, but nowadays nobody inquire in these things, है कि नहीं? But they are simply running and running just for eating, sleeping, mating, defending. How to eat nicely, how to sleep nicely, how to work day hard and night, work hard like ass. गधों की तरह, कुत्ते की तरह बस काम करना है. So these are not human beings, these are animals, right? Like hogs and dogs, simply working a day and night, simply for 4 things: just eating, sleeping, mating, defending. So nowadays our culture is simply become very compressed, compacted, just only for these things. इन चीजों की बस यही हमारा जीवन सिकुड़ गया है, बस इसको ऊपर नहीं निकल पा रहा कोई व्यक्ति, बस खाना पीना सोना, बस रोटी कपड़ा मकान, नो स्पिरिचुअल इंक्वायरी, नो स्पिरिचुअल इंक्वायरी। जब तक, और जहां पर स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं है उसको हम ह्यूमन नहीं बोल सकते हैं। ह्यूमन का मतलब वही है अथातु ब्रह्म जिज्ञासा। हु एम आई, व्हाई एम आई सफरिंग, why I came here, who is God, what is my relationship with God, and how I can get rid from this material world. These inquiry, जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी तब तक हमें अपने आप को ह्यूमन बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जानवर के पास भी रहती है जो हम अभी कर रहे हैं। ये सब चीजें ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, these things are common in animal also. जब तक कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी तब तक हम कैसे बोलेंगे कि हम ह्यूमन है? No, right? So this is the real inquiry. Why am I suffering? But nowadays nobody is questioning, nobody is asking this type of question. This is that human being. Okay, so even you see, without the will of Krishna, even one leaf can't move. That is controller. Krishna is the controller. We are not controller. You see in hospitals, big hospital, कोई भी अब देखो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टॉप हॉस्पिटल देख लीजिए, ठीक है, और कोई पेशेंट देख लीजिए, जैसे उसका बहुत ज्यादा मतलब सपोज वो मरने वाला भी है, तो कितना बड़ा से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना भी एक्सपीरियंस डॉक्टर क्यों ना हो, कोई भी डॉक्टर कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, गारंटी नहीं लेता है कि मैं इस पेशेंट को बचा दूंगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, राइट? कभी वो चाह के भी नहीं बोल पाएगा। क्यों? उसको पता है डॉक्टर को कि दिस पेशेंट इज नॉट इन माय हैंड, अल्टीमेटली हुज हैंड इट इज, कृष्णा's हैंड, राइट? तो वो ज्यादा इतना ही बोल सकता कि यस आई कैन ट्राई माय बेस्ट बट आई कांट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो जीवन जो प्राण है ना वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में, राइट? तो किस प्रकार के डूअर हैं हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम, पर इतना अहंकार क्यों है हमारे ऊपर, राइट? सो दिस इज द थिंग. So ultimately Krishna is the supreme powerful, supreme controller, doer, enjoyer, proprietor, everything. We are not, we are very finite, infinite. So you तुम खुद देखो, एक समुद्र और समुद्र की बूंद में क्या अंतर है? वही है समुद्र की बूंद और समुद्र, कितना अंतर है? मतलब एक तरीके से नथिंग, वन ड्रॉप ऑफ ओशियन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ ओशियन, नथिंग, कुछ भी नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है? तो हम और भगवान बस यही अंतर है, सोचो। लेकिन फिर भी एक मतलब हम कितना अहंकार कर रहे हैं, है कि नहीं? सोचिए। तो ये है, तो बिकॉज वी आर इन बॉडीली कॉन्शियसनेस एंड वी फॉरगॉट कृष्णा, और हम भूल गए हैं कि कृष्ण कैसे ग्रेट है, हम ये भूल गए, इसलिए अपने आप को महान कर रहे हैं। जब हम कृष्ण की ग्लोरी को सुनेंगे ना, जब कृष्ण की महानता को सुनेंगे, तब हमें जितना है अपने ऊपर अहंकार है वो सब भूल जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? अपने आप का जो अहंकार उसको दूर करने का है, टू लिसन कृष्णास ग्लोरी, हाउ कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जितना ज्यादा हम कृष्ण के बारे में उनकी ग्लोरी को सुनेंगे कि यस कृष्णा, ओ कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज सो ब्यूटीफुल, so knowledgeable, so famous, 6 things are there: beauty, knowledge, strength, wealth, fame, renunciation. तब अपने आप जितना भी है ना सब कुछ भूल जाओगे। तब फिर वो अपने आप अंदर ह्यूमिलिटी आ जाएगी, यस आई एम नथिंग, राइट? मोहम्मद अली का नाम सुना हो अपना, कितना बड़ा फाइटर था, है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? उसने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि आगे जाके मुझे पार्किंसन डिजीज हो जाएगा, तो वो चाय का कप भी नहीं उठा पाता था, समझे बात? These are the fact actually, because we are forced to material nature actually. How control we are, what type of doer we are, है कि नहीं? बड़े से बड़े लोग जो हैं कभी नहीं सोचते कि क्या होगा जीवन में, लेकिन we are forced to material. तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप कितना भी वो बोलिए, आपको करना ही पड़ेगा, because we are forced, because material nature is superior. So even greatest scientists, they can't produce even a small leaf in the laboratory simply by combining the chemicals. No, प्रैक्टिकल लेवल पे वो हो ही नहीं पाएगा, केवल हम थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कर सकते, राइट? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उनको दे देंगे, वो बोलो पानी निकाल के दिखाओ, वो पानी नहीं निकाल सकते। अगर पानी बन जाता तो आज पानी की समस्या हल हो जाती पूरे जीवन में, कभी पानी की समस्या नहीं होती, राइट?
6 कार्बन, फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उनको हम क्या कर रहे हैं 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन C6H12 और O6 और 8 और 6 ऑक्सीजन को बोलेंगे तुम्हें यहाँ पे शक्कर बना के दिखा दो, ग्लूकोज बना के दिखाओ, नहीं बना पाएंगे वो प्रैक्टिकली। अगर ऐसा होता तो फिर मार्केट में तो फिर ये सब फ्री हो जाता है, फिर तो इतना पैसा क्यों लगता है, क्योंकि बना पा रहे हैं ना हम। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें, राइट, दैट इज द रीजन। और एक सोल को भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सोल जो है मटर वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है ना, इसलिए तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, दैट इज द थिंग। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो इस जगत में हर चीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती फिर तो लेकिन नहीं कर सकते वो कभी भी। तो इस चीज को हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि समथिंग इज another thing is there who is superior, उसको हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, that thing। तो in this material world everything is dead, हर चीज डेड है, लेकिन केवल आत्मा है जो कि आध्यात्म जगत से आई है, केवल उसी की वजह से हर चीज केवल अलाइव है बस। और जैसे ही आत्मा निकल जाता है तो सब चीज धरा का धरा रह जाता है। ये हमारा शरीर हमेशा से ही डेड है, हमेशा से डेड है, लेकिन केवल आत्मा है अंदर, स्पिरिट सोल है। स्पिरिट सोल का मतलब होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है, स्पिरिचुअल, राइट, केवल उसकी वजह से ही सब काम चल रहा है, दैट इज द रीजन। ओके, तो ये है। सो लिविंग एंटिटी इज आल्सो ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो हम भी कंट्रोलर हैं, ऐसा नहीं बोले हम कंट्रोलर नहीं, हम हैं, लेकिन वी आर वेरी माइन्यूट कंट्रोलर, वेरी माइन्यूट। जैसे कोई व्यक्ति फैमिली को चला रहा है वो भी कंट्रोलर है कुछ समय के लिए, कोई टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है वो भी कंट्रोलर है, 1 घंटे के लिए, सवा घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। प्राइम फिर आपका ये प्रिंसिपल है वो भी कंट्रोलर है, ये आपका प्रिंसिपल, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर है वो भी कंट्रोलर है 5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद फिर क्या है, 5 साल के बाद पोस्ट खत्म, फिर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम कंट्रोलर है, बट वी आर वेरी माइन्यूट कंट्रोलर, बट कृष्णा इज द परमेश्वर। वी आर ईश्वर बट कृष्णा इज द परमेश्वर, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, हम हाउस बनाते हैं, भगवान ने क्या बनाया, ब्रह्मांड बना दिया। हम बनाते हैं पॉन्ड, तालाब, भगवान ने क्या बनाया, ओशियन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड कृष्णा? ये जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि यस वी आर नथिंग। सो वी आर फोर्स्ड टू मटेरियल नेचर एट एवरी स्टेप, राइट। तो बस एक वीडियो दिखा के खत्म करेंगे कि हाउ वी आर फोर्स्ड एट एवरी स्टेप। वी आर फोर्स्ड टू मटेरियल नेचर, वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ, राइट। तो जब जन्म में ही हमारा हाथ नहीं है, हम मटेरियल नेचर के द्वारा फोर्स है, तो हम किस प्रकार गेट हुआ है? उस वीडियो को देखिए ध्यान से। Let me just share screen again. Yeah, this video is very, very important. Maybe I showed it before, I don't know. You can all of you show. Usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
We're dreaming? You're actually in the middle of the workshop right now, sleeping. This is your first lesson in training. ओके, तो देखा किस तरीके से how we are forced to material nature, right? Nobody wants to take birth, but we are forced. So we have to, because these are the experimentally verified facts. Science means, what is the meaning of science? Science means experimentally verified facts, right? So these are experimentally verified facts. तो हम फिर भी हमें लगता है कि we are the doer. What kind of doer we are? किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती जन्म लेने की, लेकिन माया देवी फोर्स करती है, नहीं तो बाहर निकलो, बाहर निकलना ही पड़ेगा, और धक्के देके फिर बाहर निकाला जाता है, तो ऐसे हमारा जन्म होता है. What kind of doer we are, right? So that is why we should know actually के what is the real identity. जब अब अंदर होता है बच्चा तो कितना मतलब पूरा पैक रहता है, पूरा ना कुछ हवा लगती है, उतने सारा देखा ना कैसे, मतलब पूरा 1 नाइट, 2nd नाइट, 3rd नाइट, 4th नाइट, 10 नाइट, 1 month, 7 month, फिर कैसे मतलब व्यक्ति का कैसे बनता है, राइट? तो आप देख लिया सबने और मतलब पढ़ भी लिया होगा. तो अंडे कहने का मतलब बस यही है कि वी आर फोर्स्ड टू दिस मटेरियल नेचर. सो somehow that we have to know that कि yes, we are controlled by material nature. So only one way by which we can get rid from these 4 real problems. What's oldest disease in that, and what is that way? That is Krishna consciousness. Simply by remember Krishna, simply by knowing the greatness of Krishna, right? Simply by knowing the greatness of Krishna, we will get rid from this material bondage. Okay, so that is the solution. Okay, so thank you very much. अच्छा, तो आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट है. तो how many participants are there total? Yeah, 11 participants are there. So now I am making 4 group. Okay, so I am making 4 groups. तो आप लोगों के लिए क्या करना है, अभी जब से मैंने ये 3rd चैप्टर शुरू किया है, 3rd चैप्टर, तो उसके लिए आप लोगों को, क्योंकि अभी कल एग्जाम भी है आप लोगों का, तो इसलिए बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब अलग से तैयारी करने का टाइम नहीं रहता है. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा, तो इस बहाने मतलब प्रिपरेशन भी हो जाएगा और आप लोग कुछ सीख भी जाओगे, राइट? तो मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं. तो फर्स्ट ग्रुप मैं दे रहा हूँ, आप लोग नाम याद रखिएगा, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट ग्रुप में है विकास, हिमांशु और जय कृष्णा, ठीक है? ये फर्स्ट ग्रुप में है. सेकंड ग्रुप में है लाल बाबू, प्रबुद्ध और प्रमोद, ठीक है? थर्ड ग्रुप में है रमेश, संदीप, सुभाशीष. 3, 6 और 9, और कितने हैं? बस एक और बचे हैं, सुनील, ठीक है? तो सुनील को भी 4th ग्रुप में रख देता हूँ, ठीक है? सुनील आपको भी 4th ग्रुप में रख देता हूँ. रमेश, संदीप, सुभाशीष, सुनील. तो देयर आर 3 ग्रुप्स, ठीक है? 3 ग्रुप मैंने बना दिए. अब करना क्या है, 3rd चैप्टर का वर्स नंबर 1 to 3, कहाँ से 1 से लेके 3 तक, 1 2 3 मैं ग्रुप पर डाल दूंगा. 1 2 3 आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट ग्रुप है विकास, हिमांशु और जय कृष्णा, तो क्या करना है, जैसे आप लोग 3 लोग हो और कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो एक एक वर्ष सिलेक्ट कर लेना, एक एक वर्ष. तो करना क्या है, तो जैसे सपोज विकास ने लिया पहला वर्ष 3.1, तो उसको क्या करना है, उसमें उस वर्ष में जो परपोर्ट उसमें से आपको 5 प्रिंसिपल निकालना है. 5 प्रिंसिपल्स मतलब फिलोसफिकल पॉइंट, फिलोसफी समझते हो ना, फिलोसफिकल इंस्ट्रक्शंस टाइप की जो रहते हैं, 5 प्रिंसिपल्स. और अगर 5 नहीं मिल पा रहे हैं तो मिनिमम 3 कर सकते हो, ठीक है? मिनिमम 3 प्रिंसिपल, ठीक है? 3 प्रिंसिपल प्लस पर्सनल एप्लीकेशन. पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब है कि वो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे मतलब उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो है पर्सनल एप्लीकेशन.
तो 3 प्रिंसिपल, मिनिमम 3 प्रिंसिपल और 2 पर्सनल एप्लीकेशन, तो टोटल कितने हो गए 5 पॉइंट आपको उस वर्ष में से सिलेक्ट करना है। तो ऐसा ही कौन करेगा, हिमांशु भी ऐसे करेगा सेकंड वर्ष में से, और थर्ड वर्ष में से जय कृष्णा करेंगे। और तीनों लोगों को मिलके किसी एक को जो है उसको मतलब प्रेजेंट करना है कल। तीनों लोगों में से मिलके एक किसी को मतलब कलेक्शन कर लेना और कोई एक प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब वो आप या तो पीपीटी बना के पावर पॉइंट बना के प्रेजेंट करो, या फिर पावर पॉइंट बना के कर सकते हो तो वेरी नाइस, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वैसे नोट करके बता सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल है तो पावर पॉइंट बना के कोई एक बनाएगा और कर सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे सबको करना है। सेकंड ग्रुप के लिए है वर्ष नंबर 4 to 6, वर्ष नंबर 4 to 6 लाल बाबू, प्रबोध, प्रमोद। और थर्ड ग्रुप में है वर्ष नंबर 13, 21, 22 और आज का वर्ष है 27। 4 वर्ष हैं, 4 लोग हैं, एक एक वर्ष एक एक ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबको करना है। तो ये हो गया असाइनमेंट कल के लिए। कल आपका एग्जाम भी है और ये आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। ओके, तो आप लोग आज से रोज शुरू कर देना, आपके पास कल तक का समय है और कल आपका एग्जाम रहेगा। एग्जाम में आपका यही सब आएगा, ठीक है। जितना भी मैंने थर्ड चैप्टर से शुरू किया हुआ है मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, जो भी है आज पूरा उसमें डाल दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये इस तरीके से करेंगे ना तब कुछ फीलिंग आएगी, क्योंकि खाली मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हो, तो मुझे पता नहीं कितना आपके अंदर कितना मतलब आप मतलब समझ रहे हो, कुछ पता नहीं। जब तक कुछ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगे ना एक्टिविटी में, प्रैक्टिकल जब कुछ करोगे तब जाके लगेगा कि हाँ अभी कुछ कोर्स, अभी कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, अभी कुछ चल रहा है, तब मजा आएगा। जब खुद की बुद्धि लगेगी, खुद काम करोगे तब पता लगेगा, समझे। जैसे अभी मेरा भी भक्ति वैभव कोर्स चल रहा है, तो उसमें ऐसा ही होता है। एक्चुअली स्पीकर आता है, ऐसा नहीं कि वो बोलता रहता है, नहीं, हर एक हफ्ते बाद मेरा भी एग्जाम होता है और वो हम ग्रुप डिस्कशन भी होता है हम लोगों का, और प्रेजेंटेशन बना के उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो सेम चीज आई एम टेलिंग टू यू आल्सो, देन यू विल गेट समथिंग रियलाइजेशन, राइट। तो कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए एक्चुअली, तब रियलाइजेशन आएगा कि हाँ यार अभी कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। यस, किसी को कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा जी। प्रिंसिपल 3 और पर्सनल स्टेटमेंट। प्रिंसिपल मतलब है फिलोसफिकल पॉइंट, फिलोसफिकल पॉइंट लाइक इंस्ट्रक्शंस। और पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब है कि आपके लिए क्या है उसमें, कि आप कैसे उसमें भक्ति जीवन में कैसे प्रगति कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं भी उसके लिए भी मैं पीपीटी डाल दूंगा ग्रुप में, आप उसे सहायता ले सकते हैं, वो भी मैं ग्रुप पर डाल दूंगा कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है, वो भी डाल दूंगा। यस, और कोई प्रश्न? तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मैंने ग्रुप बनाया है आप लोग पर्सनली बात कर लो, या अपना पर्सनली ग्रुप बना लो कल के लिए खाली, या फिर आप उसको जूम क्लास पे या फोन से जैसे भी है उसको आपस में डिस्कस करो कि कैसे कैसे करना है। लेकिन फाइनली कल एक प्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो भी आप डिस्कस कर लेना कौन प्रेजेंट करेगा। तो 8 बजे तक ये चलेगा, उसके बाद फिर 8 बजे के बाद 10 मिनट का एग्जाम होगा इसी पर, ठीक है, ये चलेगा। तो कल की क्लास आप लोगों के लिए खुद ही देना है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हैप्पी कृष्ण कोर्स नाइट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी।